أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے آمنو ایمان لاؤ مانو کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ قالوا انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں گے، دھکا لگ گیا نا بن گیا کیا ہم ایمان لائیں گے کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف۔ الا خبردار انہم هم السفہاء بے شک یہی ہے بیوقوف، ولا الا مگر لیکن لا یعلمون علم نہیں رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ منافقت کا جو رکوع ہے مسلسل اسی پر بات ہو رہی ہے، اور پیچھے سے جو ہم نے پڑھا تھوڑا سا اس کو رپیٹ کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وما یخدعون الا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو اپنے آپ کے سوا کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اللہ ان میں اضافہ کرتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دھڑکتا ہوا، بما کانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، پہلی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پہلی آیت میں کہا فساد مت پھیلاؤ زمین میں، انہوں نے کہا قالوا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، کہنے لگے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک یہی ہے فساد پھیلانے والے، یہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے ان کو دوبارہ، جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مہلت دیتا ہے، منافقت کی خصلت ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کے ذریعے مہلت دے رہا۔ پھر کہا جاتا ہے وَإِذَا، اور جب کہا جاتا لَهُمْ ان سے آمن، اب غلطیاں ہو گئی ہیں پھر دوبارہ کہا جاتا آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، یہ اپنی مطلب ہر درمی پر اتنا ان کو غرور ہے ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف، ہمیں بیوقوف سمجھتے، ایمان والوں کو منافق کیا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا الا خبردار انہم هم السفہاء، یہی ہے بیوقوف،
वलाकिन ला यालमून, ये इल्म नहीं रखते हैं। अब देखिए इसी महीने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया गया। अब वजह पता है आपको क्यों कत्ल किया? हज़रत उमर को कत्ल करने की किसी को वजह पता है? क्यों कत्ल हुआ हज़रत उमर? क्यों उनके पीठ पे छुरा भौंका गया? इन्होंने एक फैसला किया था, क्योंकि वो जज थे ना, खलीफा थे। लोलो बिन मुगीरा एक यहूदी का गुलाम था, नौकर था, वो लोहार का काम करता था यहूदी। वो लोलो बिन मुगीरा जो था वो मुनाफिक था, नमाजें पढ़ता था। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं मुसलमान हूँ, मैं यहूदी के यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे उजरत नहीं मिलती है, मुझे उजरत नहीं मिलती है, मेरा इंसाफ करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे इंसाफ के अलमबरदार थे, क्योंकि वो लगी चुपड़ी बातों में नहीं आ रहे। उन्होंने कहा मैं आपका वहाँ पर मुहासरा करूँगा, दौरा करूँगा, वहाँ आकर मैं खुद देखूँगा कि हक पर कौन है। हक पर यहूदी निकला, हक पर कौन निकला? यहूदी निकला। और उन्होंने फैसला यहूदी के हक में किया। वो जिद लोलो बिन मुगीरा के दिल में रही और वही जिद का बदला जहर वाला खंजर लेकर उनके यहाँ ये जगह मारी और पूरा खंजर और भागा, फिर कत्ल हुआ। और आपको पता है उसके बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया? उन्होंने एक वहाँ सभी थे मस्जिद नबी में और उन्होंने इशारा किसकी तरफ किया? हुज़ैफा बिन यमार की तरफ। हुज़ैफा बिन यमार को बुलाया, क्योंकि हुज़ैफा बिन यमार वो इंसान थे जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक़त की लिस्ट ठहराई थी। एक लिस्ट दी थी, मुनाफिकों के नाम उसमें दर्ज थे। अल्लाह ने लिस्ट दी ना, 14 आदमियों को बराबर लिस्ट में अल्लाह ने डाला, लिस्ट नाम थे उनके। अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें बुलाया अपने पास और बोलने लगा, हुज़ैफा मुझे बता, मेरा नाम नहीं इस लिस्ट में, मरते मरते वसीयत क्या हो रही है? उनके दिल में तड़प क्या है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पर हुक्मरानी करने वाला इंसान बोल रहा है एक सहाबी को, मेरे पास बैठो। मैंने कहा मुझे इजाज़त नहीं है कहने की। कहता अल्लाह का वास्ता, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, मुझे मत बोल नाम, लेकिन इतना बता दे, तुझे अल्लाह का वास्ता और नबी का वास्ता है, मुझे इतना बता दे कि इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं। क्या इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं? मुझे कहने का आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया, बेटे बोलो अब्दुल्ला मेरे पास है। अब्दुल्ला को बुलाया और कहा पहला काम आपने ये करना है कि जब मेरा जनाजा हो रहा होगा हुज़ैफा की तरफ यहाँ रखना। अगर हुज़ैफा बिन यमार इस जनाजे में शामिल है तो मुझे कहाँ दफना? पहले उनको एक वसीयत की कि जाओ अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास और उन्हें वो जगह मांगो जो उन्होंने अपने लिए मुंतखब की है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दफन है, ऐसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दफन है। यहाँ हज़रत आयशा की जगह थी लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन ने ली। यहाँ एक कब्र खाली है, कब्र अब आज भी खाली है। हज़रत ईसा के लिए वो जगह है, वो खुद ही की कब्र खाली है, तो इसे आने वाले वहाँ दफनाए जाएंगे। तो यहाँ जो हज़रत आयशा की जगह थी जन्नतुल बकिया में, वो मांगी गई। उन्होंने कहा ठीक है मैं देती हूँ, रखी थी मैंने अपने लिए, लेकिन अब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन ने मांगी। अब्दुल्ला वापस आए और कहा उन्होंने जगह दे दी। उसके बाद कहा बेटा ख्याल रखना, अगर हज़रत हुज़ैफा बिन यमार जनाजे में होंगे तो मुझे वहाँ दफना, अगर वो जनाजे में नहीं दिखे तो मुझे कहाँ दफना? आम कब्रिस्तान। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें शक था मैं मुनाफिक की लिस्ट में तो नहीं, हम अपना ईमान का दावा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उन्होंने कहा तुम्हारा नाम ही, फिर भी बेटे को कहा अगर ये जनाजे में रहा तो समझ लेना कि मैं मोमिन हूँ। अगर हुज़ैफा बिन यमार जनाजे में नहीं होगा तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन करना। लेकिन दूसरी वसीयत और की कि दोबारा जाना मेरे गुजरने के बाद, क्योंकि हज़रत आयशा ने कहीं अमीरत के डर से जगह तो नहीं दी। दोबारा बोलना उमर का बेटा आया है, क्या बोलना?
अमीरुल मोमिनीन का ना बोलना, उमर का बेटा आपसे जगह तलब कर रहा। जब जनाजा हुआ दोबारा हज़रत अब्दुल्ला इजाज़त लेने गए कि उमर का बेटा आया है, उन्होंने कहा हाँ जाते हैं। वो फिर निकल गए वहाँ से जद्दुल बकिया से, तो वहाँ फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफनाया। ये होती है हिस्ट्री। तो ये होते हैं अमीर। मुनाफिकों ने कितना बड़ा नुकसान किया। हज़रत उमर फारूक को फारूक क्यों लक़ब पड़ा? उनका नाम उमर बिन खिताब था। फारूक, ये भी एक वाक़ा है कि एक मुनाफिक और यहूदी की लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उनको फैसला करने के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया यहूदी के हाथ में। मुनाफिक गलत था, लेकिन मुनाफिक बाहर आकर वहाँ तो तस्लीम किया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत ने तस्लीम किया कि मैं गलत हूँ, आप हक पर है। बाहर आकर फिर झगड़ने लगा, कहता ना ये चीज़ मेरी है, एक चीज़ पर लड़ाई हुई। उसके बाद यहूदी ने कहा तुम्हारे नबी ने फैसला, कहता मैं इससे बड़े एक आदमी को जानता हूँ। क्या नबी से बड़ा आदमी भी है? कहा है। कहते फिर वही चलो, अगर फैसला करो। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चले गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब गए, यहूदी ने कहा हमारा फैसला हुआ था, आपके नबी ने फैसला किया था, लेकिन ये इंसान अपने आप को मुसलमान तस्वर कर रहा है, लेकिन मानता नहीं। उसने मुनाफिक से कहा कि ये बात सही कह रहा है। मुनाफिक ने कहा ये तो बात सही कह रहा है। कहता फिर फैसला अभी मैं करता हूँ। अंदर गए, तलवार लाई और मुनाफिक की गर्दन उड़ा। अल्लाह ने उमर को उमर फारूक लक़ब दिया, फर्क करने वाला। वो उमर फारूक इसी महीने में कत्ल किए गए, और किया किसने? एक मुनाफिक। यानी ये मुनाफिक जो होते हैं, अल्लाह बचाए। हिस्ट्री आप ढूंढो कि किसने कत्ल किया, हिस्ट्री से पता चलता है एक मुनाफिक के फैसले से वो जो लूलू बिन मुगीरा था उसने कत्ल किया। और उसके बाद उन्होंने वसीयत क्या की कि मेरा नाम कहीं मुनाफिकत में तो नहीं है। ये वसीयत करने के बाद हुज़ैफा बिन यमान जनाजे में होगा तब मुझे दफनाना, जल्द बच्चा में, वरना नहीं। आपको बात समझ आई? कोई सवाल तो नहीं है? एक तर्जमा एक बार पढ़ लो। वह इज़ा और जब, ये याद रखना चाहे, वह होता है और इज़ा होता है जब। क़ीला कहा जाता है लहू उनसे, आमिनू मानो, ईमान लाओ। आमिनू के मतलब है मानो, ईमान लाओ, कमा जैसे, बड़ा मान है। आमिनू माने, ईमान लाए। अन्नासु, ये अलिफ और लाम जब भी आएगा ना, मैं पीछे भी कहा था ना, जब भी ये अलिफ लाम मिलेगा आप, ये नासु है, लेकिन अन्नासु बद्दा है। ये एक सिफात होती है, सिफात लाजिमा होती है, एक सिफात बनती है। मतलब अन्नबी, अन्नासु, अलकिताब, अलमुनाफिकीन भी है, क्योंकि ये भी एक खसलत है। अल्लज़ीना, ये जो अलिफ और लाम दो मिलते हैं, इन पर कोई भी हरकत नहीं होती, लेकिन ये यहाँ पर खत्म। अन्नासु हम पढ़ सकते हैं। जैसे ईमान लाए लोग, कालू उन्होंने कहा, आनुमिनु क्या हम ईमान लाएंगे, कमा जैसे, आमिनु ईमान लाए, अस्सुफा, ये भी देखो यहाँ पे अलिफ लाम है। अगर हम यहाँ रुके, अन्नासु अस्सुफा हम पढ़ सकते हैं। अस्सुफा, सुफाउ, क्या जैसे ईमान लाए बेवकूफ। आला खबरदार, इन्नहुम सुफाउ, बेशक यही है बेवकूफ। वलाकिन ला यालमून, लेकिन इल्म नहीं रखते। आमन्तु बिल्लाहि, उठो और